Good evening, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss 5 questions which are based on optics and the topics are related to optics. So, I hope you have seen the previous videos also. If you have not seen the previous videos and previous topics, then you can go to my channel and you can see the videos from there. Okay. So, let's start the question. And the question is saying that PQR is a right angle prism with the other angles as 60 and 30. So this is the prism and this angle is 90 degree. Here you can check the angle. This is 90 degree right angle, and this another angle, another two angles are 60 and 30. So this is the prism which is given in the question. PQ has a thin layer of liquid. So on the PQ face you can see this is the thin layer of liquid, and light falls normally on the face PR. So light is falling for normally perpendicular from this side. This is PR face. So light is incidenting perpendicular on this face PR. For TIR, for the total internal reflection, maximum refractive index of liquid will be. So this is the question asked कि liquid का maximum refractive index कितना होना चाहिए for the TIR. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट साइन दिस एंगल इज 90. वेट, दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस एंगल विल बी ऑब्वियसली, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? इट इज इक्वल टू, इफ दिस एंगल इज 90, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. Wait, so this angle will be 30. Then this theta angle will be equal to this theta angle, which is this complete angle is 90. So theta is equal to 90 minus 30. That means this theta is equal to 60 degree. So total internal reflection is happening for angle 60 degree. You can check here. This angle is theta is 60 degree, and TIR is happening. Total internal reflection is happening for 60 degree. That means 60 degree is more than the critical angle. This 60 degree angle, which is equal to theta, this angle is obviously more than the critical angle. So now we have to mention some things here. You can note down and you can check that all. So first point that we observe from here is sine 60. I am writing some terms, you can note down them. Hope these will help us to solve the question. Sine 60 is greater than साइन सी. फर्स्ट पॉइंट, अच्छा साइन 60 एंगल जो है वो साइन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से साइन 60 ज़्यादा होगा. सो साइन सी 60 इज ग्रेटर देन साइन सी. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? दैट rays traveling from this medium to another medium, this let's suppose liquid का इंडेक्स है N2 एंड इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1. तो हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाएं जिससे हमें साइन सी की वैल्यू मिल जाए? लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड द साइन सी. हमें साइन सी फाइंड करना है. लेट्स सपोज, तो हम क्या करें? साइन सी के लिए बच्चे क्या होगा? साइन सी, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में बात करें तो साइन सी को क्या लिख सकते हैं? N1 यूजिंग स्नेल्स लॉ. यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं हम. लेट्स सपोज टू यूज स्नेल्स लॉ. N1 के साथ कौन सा एंगल आएगा? साइन सी. N1 के साथ साइन सी आएगा. क्रिटिकल एंगल
with n1 we have the sin c, यहाँ पे बच्चे sin c आएगा। इट इज इक्वल टू, अब क्रिटिकल एंगल जब है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा n2 इंटू साइन 90, साइन 90 1 हो जाएगा, तो साइन 90 को मैं यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, वैसे ये 1 हो जाएगा साइन 90, दिस इज साइन 90। अब बच्चे n2 हमें फाइंड आउट करना है, साइन c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द साइन वैल्यू ऑफ साइन c। साइन c किसके इक्वल हो जाएगा, साइन c विल बी इक्वल टू साइन c, इट इज इक्वल टू, क्वेश्चन कौन सा था, पिछला क्वेश्चन था ना, 8 बचे। ओके, साइन c इज इक्वल टू साइन c, इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, दिस इज n2, n2 हमें नहीं पता, n2 वी हैव टू फाइंड, सो n2 बाय n1 की वैल्यू हमें पता है, n1 इज 1.5। सो यू कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम इसके इरेज करके फर्दर सॉल्व करते हैं। यू कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट एंड रिमेंबर दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना अभी, साइन 60 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। So sin c is equal to n2 by 1.5. Now I am going to erase this one. ठीक है, sin 60 यहाँ पे क्या है, sin 60 it is greater than sin c. So sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, चलो अभी करते हैं, sin 60 greater than sin c, this is the condition for TIR. So from here you can see साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/2 एंड इट इज़ ग्रेटर देन, साइन c की वैल्यू हमारे पास आई थी n2 बाय 1.5, या 1.5 को क्या पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट किया जा सकता है, 3/2, चलो अभी 1.5 भी लेके चलते हैं। ओके, व्हेन वी फर्दर सॉल्व इट, I am repeating, when we further solve it, it becomes 1.29, it becomes 1.29 greater than n2, greater than n2। इसके बाद बच्चे कंडीशन, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे n2 का, तो साइन चेंज हो जाएगा, n2 शुड बी लेस देन 1.29, n2 should be less than 1.29। तो n2 का जो आंसर आना चाहिए वो 1.29 आना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आइडिया लगाएं तो अप्रॉक्सीमेशन आंसर बनेगा 1.3 फॉर द TIR, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल शुड बी 1.3। तो 1.3 के अबाउट आपका आंसर आना चाहिए, 1.29 इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट आंसर अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो ये आएगा 1.29। क्वेश्चन का कंसेप्ट बच्चे क्या था, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल इज 90, ध्यान से समझो एक बार दोबारा, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 30, तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल बिकम्स, दिस थीटा एंगल बिकम्स 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल जब ये बन जाएगा, सो साइन 60 विल बी ग्रेटर देन, अब देखो 60 डिग्री के लिए TIR इज हैपनिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग फॉर 60 डिग्री। तो ऐसा नहीं है, 60 से लेस भी हो सकता है, 60 से हो सकता है 56 डिग्री के लिए भी हो, या 57 के लिए भी हो, बट वी हैव कैलकुलेटेड द कंडीशन। हमने क्या किया, साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन c, साइन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा एंगल होगा साइन 60 का, दैट्स वाई TIR इज हैपनिंग। सो दिस इज √3/2 इस साइड पुट करेंगे, साइन c का हमने रिलेशन देखा स्नेल्स लॉ से, n2 बाई 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.29 इज ग्रेटर देन n2।
तो साइन चेंज करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड से, तो N2 शुड बी लेस देन 1.29. दैट मीन्स 1.29 इज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर TIR. तो 1.29 मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस केस के लिए. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.29 से ज़्यादा कर देंगे तो TIR नहीं होगी बेसिकली. ठीक है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फॉर TIR इज 1.29. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इससे लेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इससे लेस हो 1.2 हो, मतलब फॉर TIR मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. ठीक है, 1.2 हो, 1.5 हो, 1.1 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम ये है, इससे लेस होना चाहिए, मैक्सिमम ये है. ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन डिस्कस विद मी. You can note down if you understand the question. Option number B is most right option, most accurate, you can say. Most accurate option is option number B. So let's move to the next question now. Let's move to next question, and the next question on the screen is okay. So this was first question number 1. You can note down. This is the question number 2. The plano convex lens is made of refractive index 1.6. If radius of curvature of curved surface is 60 centimeter, the focal length of the lens. So we have to find the focal length for this question, and the question is saying about plano convex lens. So this is the students plano convex lens. If you have not seen, today in the class also I have discussed 6 types of lens. So this is the plano convex lens. You can note down it. For this plano convex lens, the radius of curvature for R1, this is the R1. तो चलो थोड़ा साइड पे करते हैं बिकॉज थोड़े से कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए. सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इट्स रेडियस विल बी R1 विल बी पॉजिटिव. बच्चे R1 जो होगा इट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू. बट वी कैनॉट डिसाइड अबाउट R2 बिकॉज R2 इज इनफाइनाइट. This is the plane surface. This is plane surface. This is straight. This is not a curved surface. So that means this will be R2. R2 is equal to infinite. We cannot define R2. R2 की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हम. So this is infinite. Now we can easily find the focal length of this lens, plano convex lens. So focal length is equal to 1 by f. This is equal to, okay, now we have to use the refractive index formula. So firstly I will write the formula, which is lens maker mu2 minus mu1. mu1 is the refractive index of surrounding, mu2 is the refractive index of glass. Denominator में आएगा mu1. If you have not seen this formula, you can check from the notes. This is lens maker formula, 1 by R1 minus 1 by R2. So this is the complete formula, 1 by R2 and R1 minus 1 by R2. So students, for this question you know the value of mu1. mu1 is surrounding, surrounding is air, and the refractive index of glass is given, prism lens is given 1.6. So now we have to do the calculations. R1 is positive. So radius of curvature of curved surface is plano convex 60 centimeter. So you have to understood that the another surface will be R2, that is infinite. तो यहाँ पे आपको प्लेनो कन्वेक्स में यहाँ पे exactly नहीं लिखा, वहाँ पे एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 60. सो ही डज नॉट मेंशन कि दोनों कर्व्ड सरफेस है या वन है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा. हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना पता हो. यू कैन चेक द प्लेनो कन्वेक्स लेंस विच इज दिस वन. So now 1 by f, it is equal to 1 by f, it is equal to 1.6 minus 1, 1.6 minus 1 by 1 into, इस टर्म को पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1 by, now R1 is there, so R1 is plus 60. तो यहाँ पे आएगा plus 60 माइनस
this is plus 60, please mention the sign here. This is 1 by infinity because R2 जो है वो that is undefined. So now 1 by infinity is 0, so this will be equal to 1 by f is equal to 0.6 by 60. So you can note down up to this point 0.6 by 60, so you can write it as 6 by 600. This is 6 by 600. So when you will cancel out, you can write 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by 10, I think. Yes, no, 1 by 100. So when you cross multiply, f is equal to, f will be equal to 100 centimeter. So students, finally for this question f comes out to be 100 centimeter for the question number 2. Repeating, for the question number 2, the exact right answer is option number C. You can note down the solution, you can check the solution. If any doubt is there, if any confusion is there, then you can ask from me, or you can ask from sir also. So focal length for this question is 100 centimeter. It is positive focal length is there, so that means this lens will behave as converging lens. Okay, if focal length is positive, then the lens has to behave as converging lens, so it is positive value. So focal length for this question is positive plus 100. If he will ask कि lenses focal lenses की focal length पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव आंसर आएगा. इफ ही विल आस्क दिस लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो यू हैव टू आंसर दिस लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. आई होप इट इज क्लियर. If any doubt is there, then you can ask from sir also, or you can ask from me also. So now we are moving to the next question. You can note down this question also. This is the third question. Yes, lengthy one. Next question. Okay, then this one. Okay, so we have some questions now. 2 questions we have done, and this is the solution of second question. Right answer is 100 centimeter. You can note down the solution. Plano convex lens was given in the question. Now we have to move to the next question. Let's move to next question. The next question is the focal length of lens of refractive index 1.5 in air is 30 centimeter. When it is immersed in the liquid of refractive index is 3 by 4, then the focal length of liquid will be. So let's start the question. In this question, what we have seen here, that the refractive index is given. Okay, refractive index is 1.5. Okay, so first, in the first term, we have to find the focal length. Okay, I am using first formula 1 by f. So I am putting here f is equal to 30 centimeter because it is given focal length of our lens. The focal length of lens of refractive index 1.5 in air is 30 centimeter. So I am writing here 30, 1 by 30 is equal to, I am using the lens maker formula, it is equal to mu2 minus mu1. So mu2 is now refractive index of lens, so it is 1.5, then minus mu1 surrounding, refractive index of surrounding, लेंस की जो सराउंडिंग में है, तो लेंस की सराउंडिंग में क्या है, एयर, दैट इज हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा बच्चे, 1. साथ में क्या आएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. This is the first case. Now the second case is saying that the focal, you have to find the focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 3 by 4. I am repeating, it is immersed in a liquid of 3 by 4. So बच्चे ये जो 1.5 है, which is refractive index of lens, can we write it as 3 by 2? क्या हम इसको 3 by 2 लिख सकते हैं? So this is 1 by f, जो हमें f फाइंड आउट करनी है.
1/f इज इक्वल टू, नाउ आई एम राइटिंग 1.5 को मैं क्या लिख रहा हूँ 3/2, थोड़ा इजी करने के लिए क्योंकि मुझे एलसीएम लेना होगा। 3/2 माइनस सराउंडिंग, सो सराउंडिंग इज नाउ लिक्विड, सराउंडिंग इज 3/4। इन द अर्लियर केस देयर इज एयर, तो पिछले केस में क्या था, हवा थी, तो हवा की वजह से आंसर आ रहा था 1.5 माइनस 1। बट हेयर यू कैन सी, यहाँ पे क्या आएगा, सराउंडिंग में क्या है, इन द सराउंडिंग देयर इज लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4, तो सराउंडिंग में एयर की जगह लिक्विड आएगा 3/4 एंड 3/4। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ ब्रैकेट एंड देन रेडियस। अब बच्चे रेडियस जो है लेंस का वो तो चेंज नहीं हुआ, रेडियस तो वही है, सो इट इज 1/r1 माइनस 1/r2। सो यू कैन कैलकुलेट इट। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम लोगे देन इट विल बी इक्वल टू 4 and 4 will cancel out, you are left with 3 2s the 6, यहाँ पे आएगा 4 2, एलसीएम आया बच्चे 4, तो 3 2s the 6 माइनस 3, ऊपर आएगा 6 माइनस 3। यू कैन चेक द कैलकुलेशन, इफ़ एनी मिस्टेक इज देयर देन यू कैन, यहाँ पे आएगा बच्चे 3 एंड इट विल बी 1/r1 minus 1/r2। You can note down up to these 2 points, up to this point. Now we have to divide the two equations. We have to divide this equation with this equation. Here we have to write 1/f। तो बच्चे दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 3/3, सो इट विल बी इक्वल टू 1, ऊपर आ जाएगा 0.5, यहाँ पर आ जाएगा 3/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। सो व्हेन आई डिवाइड दीज टू, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, f/30 इट विल बी इक्वल टू 0.5। बच्चे जो 1/r1 माइनस 1/r2 है दैट विल कैंसल आउट, सो 0.5/1, एंड इफ आई फर्दर राइट इट, इट विल बिकम 0.5 विल बी इक्वल टू 1/2, सो इस तरह से ये बन जाएगा 1/2। नाउ आई हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू, वेट करना बच्चे, देन इट्स फोकल लेंथ इन लिक्विड। Wait for 1 minute please. तो बच्चे यहाँ पर जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू 15 आ जाएगा। बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बेसिकली। टाइपिंग मिस्टेक कैसे, अभी इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, ठीक है। दिस इज 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक क्या है, देखो 3 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकली पॉसिबल नहीं है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 से लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता, पहले तो यहाँ पर गलती है, तो इसको चेंज करो प्लीज़, चेंज दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आएगा 4/3। अब 4/3 के हिसाब से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, फिर इसका आंसर मैच करते हैं, बिकॉज यहाँ पे गलती हुई है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो पहले हमारे पास आया 1/f, इट इज़ इक्वल टू 0.5, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.5, साथ में पूरी टर्म आएगी, तो y यहाँ पे आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, तो यहाँ पे आएगा 1/r1 माइनस 1/r2।
R2. So I am trying to getting to the answer, trying to reach the answer. Then you can check from here that this f is equal to 30. ये f कितना गिवन है 30, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है. देन वी हैव टू फाइंड द न्यू फोकल लेंथ. तो न्यू फोकल लेंथ के लिए हमारे पास पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2. तो यहाँ पे ध्यान दो 3/2 माइनस 4/3. यहाँ पे अब दिक्कत आएगी, यहाँ पे 4/3 करना था बच्चे, जहाँ पर हमने 3/4 किया पहले, और नीचे भी 4/3 आएगा. तो यहाँ पे देखते हैं अब, है ना, 4/3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4/3. बाकी की टर्म सेम रहेगी भाई, 1/r1 माइनस 1/r2, दैट विल बी सेम. सो लेट्स टेक द एलसीएम फ्रॉम हियर नाउ. यहाँ से एलसीएम लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पे आएगा 3 3 इज द 9, यहाँ पे आएगा 4 2 इज द 8, तो 9 माइनस 1 9 माइनस 3 2 एलसीएम 6, 3 3 इज द 9 एंड 4 2 इज द 8. सो नीचे आएगा 6, तो ये आपका आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू हेयर इज 4/3. सो बच्चे यहाँ पे आएगा 4/3, साथ में आपका आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2. So now it is equal to 1/f. So 3 2 is the 6, so here 4 2 is the 8. तो बच्चे यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे फर्दर, इट इज़ 1/30. ये पुराना केस था, 1/30 इज इक्वल टू यहाँ पे है 0.5. सो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1/2. तो इसको हम 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो कहीं पे. इट इज़ 1/2. सो 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. नाउ डिवाइड द टू इक्वेशंस. नाउ डिवाइड द टू इक्वेशंस. इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग दिस टू, हमारे पास क्या आएगा, f/30 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/2, और जो दूसरी टर्म थी इंटू 1/8, दैट विल बी इन, इस तरह से चली जाएगी. 1/r1 जो 1/r1 माइनस r2 था, दैट विल कैंसल आउट, बिकॉज लेंस की जो रेडियस है दैट आर सेम. 1/r1 माइनस 1/r2 दैट आर सेम फॉर बोथ द केसेस, वो चेंज नहीं होंगे बच्चे. सो फ्रॉम हेयर यू कैन डू द, नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. दिस इज 2 4 is the 8, so 4 3 is the 12. focal length is equal to 30 into 4 120. तो बच्चे पिछले क्वेश्चन में जब हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, सो प्लीज़ टेक केयर, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग की मिस्टेक की, टाइपिंग की. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1, सो इट शुड बी इक्वल टू 4/3. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 होनी चाहिए थी, and you have to do the calculations with 4/3, and the right answer is option number C. So this is the conclusion from my end, and you can check the answer also. If any problem is there, then you can contact to sir, or you can contact on my number also. So this is the question number 3. You can note down the solution. Okay, you can note down the solution. So 3 questions we have discussed up to this time. You can note down all the 3 questions in your notebook. Change the refractive index here 4/3. In the previous question we have discussed
about the plano-convex lens. In the previous question, we have discussed about the TIR, which is total internal reflection. So question number 1 discussed, question number 2 discussed, question number 3 discussed. If any doubt is there, then you can ask. Okay. So next is a convex lens is dipped in the liquid whose refractive index is equal to the refractive index of lens. Then its focal length will be. तो बच्चे देखते हैं क्या होगा, बट थोड़ा सा अगर आप सोचने की कोशिश करो देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन एंड ऑल्सो. आप अपने एंड पे भी एक बार ट्राई करो. प्लीज पॉज द वीडियो. हाँ, इंडिया का स्कोर हो चुका है बच्चे 138 आउट ऑफ अभी 138 इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 78 बॉल्स. कुछ बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है. तो जल्दी से बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन द लिक्विड. सो लेट्स सी. सो दिस इज लेट्स सपोज लिक्विड. ये हमारा एक लिक्विड है, ठीक है. एक बार लिक्विड मार्कर. ओके, दिस इज द लिक्विड. तो ये लिक्विड है. अब बच्चे सोचो, अगर वैसे तो मैं बेसिकली फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, बट फिर भी एक मेथड होता है हर क्वेश्चन को करने का. सो हम उस मेथड से भी फॉलो करेंगे. सो सी हियर. अब दिस इज द लिक्विड. ये हमारे पास एक लेंस है. कन्वेक्स लेंस बोल रहा है. यस, दिस इज द कन्वेक्स लेंस. अब व्हाट विल हैपन हियर नाउ. व्हाट विल हैपन. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी N2 है, यहाँ इसका भी ले लो कि इसका 1.5 है. सपोज ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब रिफ्रैक्शन कब होती है. व्हेन डज रिफ्रैक्शन हैपन. रिफ्रैक्शन कब होती है. व्हेन देयर इज चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हेन देयर इज नो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शेप डज नॉट इफेक्ट. देखो, ये भी ग्लास ही है, लेंस तो था, लेकिन सराउंडिंग में जो लिक्विड फिल कर दिया उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. तो रेज इस तरह से सीधी चली जाएंगी. रेज डेविएट नहीं होंगी बच्चे बेसिकली. वेट एक मिनट, सीधी रेज बनाएं थोड़ी सी, बिकॉज मेरे पास जो मार्कर है वो डायरेक्टली हैंड रिटन नहीं होता, तो इस वजह से लाइंस थोड़ी सीधी होती हैं ना, ज़्यादा सीधी. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, दीज आर द लाइंस. तो ये लाइंस कहीं मिलेंगे नहीं बेसिकली. दीज लाइंस विल नॉट मीट एनीवेयर. दैट मीन्स इस लेंस की फोकल लेंथ क्या हुई. फोकल लेंथ तो हुई नहीं, कहीं पे फोकस नहीं ना कर रहा लेंस. दैट मीन्स इट्स फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट. इट बिकम्स इनफाइनाइट. अब क्या करना है. अब फोकल लेंथ कहीं नहीं कर रहा तो जीरो तो नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट ही बोलेंगे जब फोकल लेंथ है ही नहीं. तो चलो एक बार फॉर्मूले से भी कंफर्म कर लेते हैं कि इनफाइनाइट आना चाहिए या जीरो आना चाहिए. तो वी विल यूज द लेंस मेकर फार्मूला. हमारे पास फोकल लेंथ 1/f. दैट फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू. अब ये फोकल लेंथ किसके इक्वल है. इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे क्या है. लेट्स सपोज 1.5 है. सराउंडिंग का क्या है. सराउंडिंग का भी कहते हैं 1.5 है, ठीक है. सराउंडिंग का भी 1.5 है. साथ में क्या आ जाएगा 1.5 नीचे भी आ जाएगा, बिकॉज सराउंडिंग एंड एवरीथिंग हैज सेम. सराउंडिंग इज ऑल्सो द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सराउंडिंग इज ऑल्सो हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज द लेंस इज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इट इज 1/r1. now it is 1/r1 minus 1/r2. तो बच्चे अगर आप कैलकुलेट करोगे when you will have to find the f, तो f को राइट हैंड साइड पे ले जाओ. लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपकी टर्म आएगी उसके नीचे क्या आएगा 1.5/0. 1.5/0. सो दैट मीन्स फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. फोकल लेंथ को आप डिफाइन नहीं कर सकते. फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. यू कैन नोट डाउन. ओके, ये वाली टर्म भी इस साइड जाएगी बच्चे, ऐसी बात नहीं है. ये R1 वाली टर्म भी जाएगी यहाँ पे, लेकिन
फोकल लेंथ को अगर आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो ये जो 1.5 माइनस 1.5 है, ये जीरो जो है नीचे चली जाएगी। सो ड्यू टू दिस जीरो यू कैन नॉट डिफाइन द फोकल लेंथ। आप फोकल लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो उसका आंसर आप इनफाइनाइट लिखोगे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द right answer for this fourth question. I hope it is clear. If any doubt is there, then you can discuss, okay, after the class or in the class, whenever you feel that you can ask. So this is the question number 4, and we are left with one question, which is question number 5. You can note down the question number 4, okay. Now we have to move to the question number 5. The question number 5 is on screen, and it is saying that in the figure air lens of refractive index, in a figure an air lens of radii of curvature 10 cm r1 equal to r2 equal to 10 cm is cut in a cylinder of glass of refractive index 1.5. The focal length and nature of lens. Okay, so this is the question. Let's start the question. The question is saying that this is a solid cylinder. Wait, marker. Okay, this is a cylinder. This is glass cylinder, and the lens is cut from here. This is the lens. इसकी कटिंग कर दी इस तरह से. So he is saying R1 is equal to R2 equal to 10. So now we have to find the focal length. Okay, so let's start. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं using lens maker again. So lens maker formula says that 1 by focal length 1 by f is equal to 1 by f is equal to लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1. इट इज़ मेड अप ऑफ एयर. तो एयर बबल की तरह है. इट इज़ सपोज वाटर में एयर बबल हो, दिस इज दैट केस. ग्लास में एक एयर का बबल है, दैट इज लाइक दिस लेंस इज लाइक दैट लेंस. तो बट इसको यहाँ पे डिज़ाइन खुद किया है, इट इज़ नॉट नेचुरल. सो 1 माइनस सराउंडिंग हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द सराउंडिंग हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. डिनोमिनेटर में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सो इट इज़ 1.5. देन 1 बाई R1. सो R1 बच्चे इस साइड आएगा, R1 पॉजिटिव होगा. R2 इस साइड आएगा तो R2 नेगेटिव होगा फॉर द कन्वेक्स लेंस. सो इट इज़ इक्वल टू 1 बाई वैल्यू गिवन है 10, सो इट इज़ 10. एंड हेयर वी हैव टू पुट माइनस 1 बाई 10. ये भी माइनस आएगा यहाँ पे बिकॉज R2 इज नेगेटिव. ठीक है, R2 इज नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस आएगा. इसको हटा रहा, आई एम एलिमिनेटिंग दिस माइनस. मैं इस माइनस को हटा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस. इट विल बी 1 बाई 10. प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप. प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप. सो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 0.5 बाय 1.5. 0.5 बाय 1.5 इंटू 2 बाई 10. 2 बाई 10. सो कैंसिल आउट इट. अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं. सो इट विल बी 5 2 द 10. तो 5 2 के साथ ये कैंसिल हो गया. सो हमारे पास आंसर आया 15. यू कैन चेक द कैलकुलेशन. यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार. पहले हमने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को कैंसिल किया 1.5 एंड 0.5. फिर 5 2 द 10, तो ये पूरी टर्म ऊपर की कैंसिल हो गई. 5 2 द 10. दैट मीन्स 1 बाई एफ इज इक्वल टू 15. बट यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि 1 में से हम माइनस कर रहे थे. यहाँ पे 1 में से 1 में से 1.5 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस आएगा. दैट मीन्स फोकल लेंथ फॉर दिस केस, फोकल लेंथ फॉर दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी -15 सेंटीमीटर. बच्चे एक और चीज़ याद रखना, जब भी लेंस दिया हो, लेंस की सराउंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे एयर था और सराउंडिंग में क्या था, ग्लास. तो जब भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस हो, लेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, देन द लेंस विल बिहेव एज ऑपोजिट.
तो लेंस ऑपोजिट बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे कन्वेक्स है, तो अगर कन्वेक्स लेंस की कन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तब तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, नॉर्मल बिहेव जैसा उसका होता है। बट सपोज कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, इन दैट केस लेंस विल बिहेव एज ऑपोजिट नेचर, इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो कि एयर का हमने बबल लिया, दैट मीन्स जो कन्वेक्स लेंस बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 है। बट जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। सो दिस कन्वेक्स लेंस, ये जो कन्वेक्स लेंस है दिस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। तो जब भी कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस होगा देन इट विल बिहेव एज नेचुरल, अदरवाइज इट विल बिहेव एज ओपोजिट नेचर। तो वो कनकेव की तरह बिहेव करेगा अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में और भी क्वेश्चंस आएंगे और भी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे कल की क्लास में या डे आफ्टर द टुमारो, संडे के बाद करेंगे क्वेश्चंस। तो you have to do 5 questions, you can note down these 5 if you understand well, and I hope some of the students have taken it seriously। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सीरियसली इस वीडियो को देखा होगा एंड सीरियसली उन क्वेश्चंस को नोट किया होगा। सो यू कैन नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड द आंसर इज 15 सेंटीमीटर कनकेव लेंस। तो इसका आंसर हमने नहीं मार्क किया था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सेंटीमीटर कनकेव लेंस। You can note down all the questions and you can note down the answers also in your notebook. So this is the question number 5. Here you can see question number 5 it is, and the answer is option number C. In the previous question the answer was becomes infinite. Option number A is the right answer for fourth question. For the previous question you have to make a correction here. You have to make a correction here. Refractive index is equal to 4/3 and the answer comes out to be 120. Option number C is the right answer for this question. This is the question number 3. Okay, now 5, 4. This is the question number 3. This is the question number 2. This is the question number 2 and you can note down the answer. Answer for this question is I think 100 आया था इसका। Option number C is the right answer. And this is the question number 1. You can note down this question. This is also very much important question from the topic total internal reflection. Okay, so I hope you have seen the questions and you have seen the approach to the solution of questions also. So if you feel that this video is useful to you as well as may be useful to your friends also, so then you can like, share and subscribe the channel. And if you feel that this video is not useful, then you can give your valuable suggestions for improving the quality, improving the quality of question or quantity of questions. So your suggestions will be very valuable to me. So I hope you will be waiting for this video also from many days, and for the next upcoming days, in the next upcoming days we are also trying to upload a test series of questions unit wise, or you can say chapter wise. We will try it that unit wise requirement is there or chapter wise requirement is there. So wait for that also. We will be updating the channel soon with the daily updates, because this video is after many days, so sorry for that. And thank you so much students. Please share and subscribe the channel if you find this video helpful. Thank you so much.